Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is New Oxford Modern English for grade 7 third edition. Open the page number 29. In today's videos, you will find the complete solution of chapter number 3, Black Beauty. Exercise. The first part of the exercise is comprehension. In this part, they have so many questions. I have already made notes for it. The next part, be working with words. I have also prepared note for this. The next section is learning about language. इसमें grammar है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी. Learning about language is consist of about 6 questions, which I have already solved and shared with you. The next section is D, listening and speaking. And finally, there is composition. And this video till composition will be solved one by one question in this video, so make sure to watch the entire video. Let's move toward the first question. Comprehension. Comprehension means समझ कर पढ़ना. Answer the following question. The horse said, "My mother and an old riding horse seemed to know all about it." What was it that they knew about? How did they know? The horse says, यानी घोड़े ने, ये जो सेंटेंस जो बुक से लिया गया है, वो किस बारे में जानते थे? इन्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? इसका आंसर आप देखिए. They knew a hunt was happening because they had seen and heard it many times before and recognized the sound of the horns. इन्हें मालूम था कि शिकार हो रहा है क्योंकि वो इसे कई बार देख चुके थे और सुन चुके थे और कुत्तों की आवाज को पहचानते थे. Why did the dogs stop barking and began to run about with their noses to the ground? The dogs stopped barking and began to run about with their noses to the ground because they had lost the scent of the hare. कुत्ते भौंकना बंद करके अपनी नाक जमीन पर रखकर इधर उधर दौड़ने लगे क्योंकि वो खरगोश की खुशबू का सुराख लगाना खो चुके थे. नेक्स्ट क्वेश्चन सी है. Which lines tell us that some? क्वेश्चन बुक से मुकम्मल करें. The line, "We young colts wanted to be galloping with them," shows that some of the horses wanted to join the hunt. They wished to join in with the galloping riders and the excitement of the hunt. The line, "We young colts," यानी हम घोड़े भी इनके साथ दौड़ना चाहते थे, जाहिर करता है कि कुछ घोड़े शिकार में शामिल होना चाहते थे. वो दौड़ती हुई सवारों और शिकार के जोश व खरोश में शरीक होना चाहते थे. डी क्वेश्चन, why was the hare wild with fright? खरगोश बहुत ज़्यादा डरा हुआ क्यों था? The hare was wild with fright because it was being chased by the hunting dogs and was trying to escape. खरगोश इसलिए ज़्यादा खौफज़दा हो गया था क्योंकि शिकारी कुत्ते इनका पीछा कर रहे थे और वो बचने की कोशिश कर रहे थे. आंसर दें. The hare was catched by the hunting dogs and killed after they chased her across the field. खरगोश का शिकार करने वाले कुत्तों ने पीछा किया और खेत के इस पार दौड़ने के बाद इसे पकड़कर मार दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Why did the huntsman whip off the dogs? The huntsman whipped off the dogs to stop them from tearing the hare to pieces after they had caught and killed it. Next question है. Why was the young horse, the storyteller, astonished? क्यों young horse यानी कहानी सुनाने वाला हैरान था? आंसर में लिखें. The young horse was astonished because he had never seen a hunt before and was shocked by the noise, speed and the killing of the hare. नौजवान घोड़ा इसलिए हैरान था क्योंकि इसने पहले कभी शिकारी नहीं देखा था और वो शोर, रफ्तार और खरगोश के मारे जाने से सदमे में आ गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है. How do we first realize that? क्वेश्चन बुक से मुकम्मल करें. We realize a horse is telling the story when the narrator says, "My mother and an old riding horse seem to know all about it," and talks about
the young colts, showing that the storyteller is a young horse. इन दो सेंटेंसेस से ये वाज़ेह हो रहा है कि जो हॉर्स ये स्टोरी सुना रहा है, यानी जो स्टोरी टेलर है, वो खुद एक यंग हॉर्स है। आई क्वेश्चन है, विच अदर एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम द हेयर suffered or were harmed during the hunt? इसके आंसर में आप लिखें, 2 horses were harmed during the hunt. They fell and one of the riders lay still, possibly badly injured. Comprehension का second question है, answer the following with reference to context. यहाँ एक sentence given है, इसी के about नीचे 3 question जो है इनको solve करना है. Sentence है, they have lost the scent, said the old horse, perhaps the hare will get off. Who is the old horse speaking to? The old horse is speaking to the young horses, including the storyteller. What does the scent refer to? इसके आंसर में लिखें, the scent refers to the smell or trail of the hare that the hunting dogs were following. The scent refer to the यानी खरगोश की बू या निशान है जिसका शिकार करने वाले कुत्ते पीछा कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, what reaction does the speaker get to the statement? One of the young horses asked, what hare? Showing curiosity, lack of understanding about the hunt. इनमें से एक नौउम्र घोड़े ने पूछा, what hare? क्या खरगोश? ये बात इसकी तजस्सुस और शिकार के बारे में समझ की कमी को जाहिर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड सेवर्स हिम राइट टू सेड वन ऑफ द कोर्ट्स। इसके अबाउट क्वेश्चंस हैं, टू whom are these words addressed? These words are addressed to the other courts and horses nearby, including the storyteller. क्वेश्चन का आंसर है, it means he got what he deserved, or it is a fair punishment for the action. Third question है, which incident is the speaker? Question book से मुकम्मल करें। The speaker is referring to the rider who fell off his horse and lay still, possibly injured during the hunt. पेज नंबर 31 के क्वेश्चन आंसर मुकम्मल हो गए हैं। बी पार्ट है, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। बिलो आर सम वर्ड्स, एड एक्सप्रेशन फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से कुछ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस ली गए हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी, एंड आफ्टर रीडिंग द वर्ड्स अगेन इन देयर कॉन्टेक्स्ट गिव द मीनिंग ऑफ ईच। हर वर्ड्स के आपने मीनिंग्स देने हैं। यहाँ पे इन वर्ड्स के मैंने उर्दू में भी मीनिंग्स लिखे हुए हैं और साथ में मैंने इंग्लिश मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन वर्ड्स के उर्दू की मीनिंग जानते हैं। मेडोज का मतलब है घास का मैदान। वाइन, वाइन का मतलब है रोने की आवाज़ या सिसकी। हॉर्स बैक, घोड़े की सवारी। स्नोटेड, नाक से जोर से सांस खारिज करना। नेक्स्ट वर्ड है लाइकली, गालिबन मुमकिन तौर पर। ब्रोक, नदी, छोटी नदी। सीम्ड, मालूम होता है, लगता है। एस्टोनिश्ड, हैरान, धंक रह जाना। अब इसके इंग्लिश मीनिंग्स देखते हैं। मेडो, ग्रासी फील्ड्स यूज्ड फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स और कटिंग है। सूखी घास को है बोलते हैं। वाइन, अ हाई पिच्ड complaining or anxious sound. Horseback, the act of riding on a horse. Snorted, a loud sound made by forcing air through the nose, often showing excitement or impatience. Likely, probably, something that is expected to happen. Broke, a small stream of water. Seemed, appeared to be, give the impression of being. Astonished, very surprised or shocked. Expression में कुछ words given है। Prick up his ears, यानी तवज्जो से कोई बात सुनना। उसने कान खड़े कर लिए। Lost the scent, खुशबू का सुराख खो दिया। यानी जब कोई शिकारी कुत्ते शिकार का पता खो देते हैं, उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि शिकार कहाँ पर है। उस एक्सप्रेशंस के लिए ये वर्ड यूज होता है lost the scent. Wild with fright, बहुत ज़्यादा खौफज़दा होना, खौफ से पागल होना। ग्रेट डील, ग्रेट डील का मतलब है बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक। रिक्ट अप हिज ईयर, इसने कान खड़े कर दिए यानी तवज्जो से सुनने के लिए। लॉस्ट द सेंट, खुशबू का सुराख खो दिया।
वाइल्ड विद फ्राइड, खौफ से पागल, शदीद खौफज़दा, अ ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा, काफ़ी या काफ़ी हद तक। नेक्स्ट पार्ट है सी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यानी ज़बान के बारे में सीखना। इस सेक्शन में अमूमन ग्रामर के अबाउट क्वेश्चंस होते हैं। जेंडर बेस्ड नाउन यानी वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है, इसे के अबाउट की क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द पैसेज द वर्ड्स कोल्ड एंड स्टैग आर यूज्ड, ये दो वर्ड्स इस चैप्टर में यूज हुए हैं। इफ द जेंडर ऑफ द एनिमल वाज नॉट नोन और अनइम्पोर्टेंट, the neutral nouns horse and deer could have been used. Say whether the following words are masculine, feminine, or gender neutral. Use the dictionary to help you use the word in oral sentences. इन sentences को आपने बताना है कि ये masculine है, feminine है या neutral है। ओके इन वर्ड्स का जिस जेंडर से ताल्लुक है, अगर वो masculine है तो मैंने इसके ऊपर M लिखा हुआ है, अगर feminine है तो ऊपर मैंने F लिखा हुआ है, और अगर वो न्यूट्रल है तो मैंने इसके ऊपर एन लिखा हुआ है। आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट वर्ड न्यूट्रल है, सेकंड न्यूट्रल है, सिबलिंग न्यूट्रल है, शॉपकीपर भी न्यूट्रल है। टेल शॉपकीपर कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, इस वजह से ये न्यूट्रल है। टेलर भी न्यूट्रल है, सोल्जर भी न्यूट्रल है, ब्रदर मैस्कुलिन है, रोस्टर मैस्कुलिन है, वेटर अमूमन जो है मैस्कुलिन ही होता है, इस वजह से मैंने इसके ऊपर एम लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड न्यूट्रल है, एडल्ट न्यूट्रल है। नेक्स्ट वर्ड फेमिनिन, पुलिसमैन जो है वो मैस्कुलिन है। सीम स्ट्रीट फेमिनिन, हैंड फेमिनिन है, मैन मैस्कुलिन है। चेयरपर्सन न्यूट्रल है और लास्ट वर्ड भी न्यूट्रल है। नेक्स्ट वर्ब के बारे में तफसील से समझाया गया है, उम्मीद है आप खुद पढ़ सकेंगे। आप पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि यही नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी के अबाउट होते हैं। अगर आप इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अंडरलाइन द लिंकिंग वर्ब इन द फॉलोइंग। लिंकिंग वर्ब जो है इन सेंटेंसेस में लिंकिंग वर्ब को अंडरलाइन करना है। द बिल्डिंग सीम्स अनस्टेबल, सीम्स लिंकिंग वर्ब है। दे वर लेट टू स्कूल, वर लिंकिंग वर्ब है। आर द बुक्स इन द बैग, आर लिंकिंग वर्ब है। द लॉयंस मेन वॉज येलो, वॉज लिंकिंग वर्ब है। आफ्टर अ वाइल ऑन द बाइक्स वी बिकेम टायर्ड, बिकेम जो है वो लिंकिंग वर्ब है। आप इस पैराग्राफ को भी खुद ही रीड कर लें। क्वेश्चन है अंडरलाइन द लिंकिंग वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 3 ऑफ द सेंटेंसेस कंटेन एक्शन वर्ब नॉट लिंकिंग वर्ब। इन सेंटेंसेस में जो लिंकिंग वर्ब्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर लिया है, और जो लिंकिंग वर्ब्स नहीं हैं उनमें ये वाले वर्ड शामिल हैं। फेल्ट, टेस्टेड, ग्रीव, ये नॉट लिंकिंग वर्ब्स हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही फील्स सैड, फील लिंकिंग वर्ब है, किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, फीलिंग को जाहिर कर रहा है। क्या जाहिर कर रहा है, फीलिंग्स को शो कर रहा है। फेल्ट, फेल्ट वर्ड लिंकिंग वर्ब नहीं है। नेक्स्ट थर्ड डी सेंटेंस में टेस्टेड जो है वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। सेंटेंस में साउंड लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि वो म्यूजिक को डिस्क्राइब कर रहा है। द प्लांट्स ग्रीव स्लोली, प्लांट्स की ग्रोथ को ग्रीव वर्ड जो है वो प्लांट की ग्रोथ को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में ग्रीव लिंकिंग वर्ब नहीं है। माई फेवरेट ड्रिंक्स आर कॉफ़ी एंड टी, इस सेंटेंस में आर जो है वो लिंकिंग वर्ब है। ओके नेक्स्ट सेंटेंस है ड्यूरिंग द फायरवर्क्स द चिल्ड्रन रिमेन्ड अस्लीप, रिमेन्ड लिंकिंग वर्ब है। और लास्ट सेंटेंस में टर्न्ड, ये लिंकिंग वर्ब है। ओके क्वेश्चन नंबर 4 है यूज द फॉलोइंग वर्ब्स एज लिंकिंग वर्ब्स इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ फॉलोइंग में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं एज अ लिंकिंग वर्ब है, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, दे आर ऑल टेकन फ्रॉम द स्टोरी। इन वर्ड्स की मैंने सेंटेंसेस बनाई हुई हैं, एज अ लिंकिंग वर्ब्स मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं, आपसे शेयर करूँगी। इससे पहले मैं आपसे ये लाइंस जो यहाँ गिवन है इसके बारे में बता दूँ। अ लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड, हंग ओवर का मतलब है above। द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग, डॉग्स लेफ्ट ऑफ का मतलब है स्टॉप्ड बार्किंग। परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब है स्केप, यानी स्केप की जगह गेट ऑफ यूज हुआ है।
stopped की जगह left off यूज हुआ है और above की जगह hang over यूज हुआ है। हर सेंटेंस में वर्ब जो है एज अ प्रपोजिशन फॉलो किया गया है और ये ज़रूरी है कि करेक्ट प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाए। सम प्रपोजिशन विल चेंज द मीनिंग। कुछ प्रपोजिशन जब हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी मीनिंग्स चेंज हो जाती हैं। अदर प्रपोजिशन में नॉट बी यूज्ड, अदर प्रपोजिशन में नॉट बी यूज्ड और बाकी प्रपोजिशंस वर्ड्स फिर उसकी जगह यूज़ नहीं किए जा सकते। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और आगे भी पूरा पैराग्राफ इसके अबाउट गिवन है। पहले मैं इसके इन वर्ड्स के आपके साथ सेंटेंसेस शेयर कर लेती हूँ। बी को एज अ लिंकिंग वर्ब यूज़ किया गया है। शी इज़ अ डॉक्टर। इज़ जो है वो बी की फैमिली से ही है, इसलिए ये इज़ जो है ये लिंकिंग वर्ब है। बिकम, ही became tired after the long journey. Seem, it seems quiet today. Okay, next word है feel. I feel happy about the results. Taste, this soup tastes delicious. Look, you look upset. Smell, the flowers smell sweet. Grow, he grew anxious waiting for the call. Turn, the milk turned sour in the heat. Remain, she remained calm during the test. Stay, please stay quiet until I am done speaking. Okay. Next page, page number 34. इस पे ये बकाया पैराग्राफ जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लें। इसमें काफ़ी तफसील से समझाया गया है। उम्मीद है आप खुद कर सकेंगे। इसी के अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूज़ वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स in the place of word in italic. In each sentence below, a phrasal verb can be used more than once. Phrasal verbs यहाँ पे given है इस बॉक्स में और नीचे कुछ sentences given है। इन्हीं words की putting इन नीचे sentences में करनी है और ये words एक से ज़्यादा दफ़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर ही इसको सॉल्व किया हुआ है। The news about शाकिर was not true, it was rumor circulated. तो italic words में ये वाला word लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने लिखना है put about. The story was so exciting only because it was communicated in a dramatic way. Communicated की जगह आप लिखें put across. The old couple saved a little money. Saved a little की जगह आप लिखें put away. Every month for their retirement. The large man consumed. Consumed की जगह आप लिखें put away 12 cakes and 2 liters of milk. They moved into the office as soon as the fans had been installed. इसकी जगह आप लिखें यानी installed की जगह आप लिखें put in. Because of the rain, the match was postponed. Put off. Postponed की जगह आप लिखें put off. Second last sentence है the firemen soon extinguished the blazing fire. Extinguished की जगह आप लिखें put out. The old man dislocated his shoulder while he was digging a flower bed. Dislocated की जगह आप लिखें put out. उम्मीद है आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। फर्स्ट यूज देम एज अ फ्रेजल वर्ब एंड देन इन देयर लेटरल सेंस। एक दफ़ा आपने एक सेंटेंस को यूज़ करना है फ्रेजल वर्ब्स की जगह और दूसरी दफ़ा आपने इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करना है लेकिन लेटरल सेंस में। एग्जाम्पल यहाँ गिवन है कम आफ्टर, जिसका एक मीनिंग है फॉलो और दूसरा मीनिंग है चेज। और यहाँ पे सेंटेंसेस भी बनाए गए हैं। यहाँ एग्जाम्पल गिवन है सेम इसी तरह ये वाले वर्ड जो गिवन है इनके भी ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने हैं। मैंने इनके नोट बनाए हैं, आपसे शेयर करूंगी। फर्स्ट वर्ड है गेट बाय, जिसका फ्रेजल वर्ब का सेंटेंस मैंने बनाया है वी आर पुअर बट वी गेट बाय। फ्रेजल वर्ब में इसकी मीनिंग है मैनेज एंड लिटरल मीनिंग्स हैं इसके मूव फास्ट। सेंटेंसेस का लिखे आई सेड एक्सक्यूज मी सो आई कुड गेट बाय हिम। नेक्स्ट वर्ड है गेट थ्रू, जिसके फ्रेजल वर्ब में मीनिंग है फिनिश और पास। सेंटेंस लिखे वी गेट थ्रू हर टेस्ट इजीली। लिटरल मूव थ्रू, लिटरल में इसकी मीनिंग है मूव थ्रू। वी गॉट थ्रू द क्राउड टू द फ्रंट। नेक्स्ट वर्ड है fall through, फ्रेजल वर्ब है fail, the deal fell through at last minute। and next word है literal fall down,
he fall through the hole in the floor. नेक्स्ट वर्ड है look into. look into का phrasal verb है investigate और सेंटेंस लिखें The doctor will look into the matter और literal में इसकी मीनिंग बनते हैं see inside. सेंटेंस लिखें She looked into the box and found her toy. नेक्स्ट वर्ड है bring up. इसकी मीनिंग है mention. He brought up an old story. मीनिंग्स बनते हैं lift. He brought up the bucket from the well. नेक्स्ट वर्ड है stand in. phrasal verb है take someone's place. सेंटेंस लिखे all stood in for the teacher. Literal मीनिंग है इसके stand inside. She stood in the rain for a while. दी सेक्शन है listening and speaking, सुनना और बोलना, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है some conversation take place between Black Beauty, the mother and the other horses in the field. What else might they have said to each other? कुछ कन्वर्सेशन, कुछ बातें, कुछ बातचीत ब्लैक ब्यूटी की अपनी मदर से और बाकी हॉर्सेस से खेत में हुई है. उनके बीच एक दूसरे से क्या बातें हुई हैं. Work with a classmate or in a small group. Discuss what they might say to each other and write a shorter dialogue in the form of a play. When you have finished, read or enact the dialogue to the other in your class. इसी के बारे में आपने अपने क्लासमेट के साथ एक छोटा सा ग्रुप बनाना है और डिस्कस करना है. वैसे तो ये ओरल एक्टिविटी है, लेकिन मैंने इसके भी नोट बनाए हैं, आपसे शेयर करूंगी. इस डायलॉग का टाइटल है अ कन्वर्सेशन इन द फील्ड. सीन क्या है. अ सीन अ पीसफुल ग्रीन फील्ड, हॉर्सेस एंड ग्रेजिंग व्हेन दे हियर बार्किंग इन डिस्टेंस. थ्री कैरेक्टर्स में एक है ब्लैक ब्यूटी, एक है कॉल्स और एक है मदर. ब्लैक ब्यूटी looking up what's that noise. Dogs. Calls. Yes, it's the hunt. Wish I could run with them. Black Beauty. Me too. It sounds so exciting. Mother. Gently. No, my child. That sound means danger, not fun. Old horse. The hunt has begun. The dogs are chasing a poor animals, maybe a hare. Black Beauty. Why would they chase a little hare? Mother. For sport, not need. The hare runs for its life while people and dogs enjoy the chase. Called. That's so cruel. Old horse. Yes, I have seen it before. Many times the hare doesn't escape. Black Beauty. I don't want to join that. Running should feel free, not fearful. Mother. That's right. Remember, strength is not in hurting other, but in protecting them. All the horses stand quietly thinking about what they have heard. इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस विद अ पार्टनर अबाउट योर ओपिनियन ऑन द ब्लैक ब्यूटी. देन टॉक अबाउट हाउ मच ऑफ योर ओपिनियन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड द कैरेक्टर और द सीन. इस क्वेश्चन का आंसर देखें. ओके, ओपिनियन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप बेशक यहाँ से नोट कर लें. और साथ में मैं आपको बताती चलूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके काम आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो. इसके अलावा ऐसे बच्चे जो मुझे हिली एरियाज से देख रहे हैं, उनके पेपर प्लेन एरियाज के मुकाबले में जल्दी हो जाया करते हैं. तो प्लेन एरियाज के बच्चों को हिली एरियाज के पेपर चाहिए होते हैं, एज अ सैम्पल, एज अ मॉडल पेपर चाहिए होते हैं. तो जो भी बच्चे मुझे हिली एरियाज से देख रहे हैं, तो करंटली मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 03325177 इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपने पेपर, चाहे वो मिड टर्म के हैं, चाहे वो फाइनल ईयर्स के हैं, क्लास 7 के पेपर भी, या आपके जो रिलेटिव दूसरी क्लासेस में है, यानी 3 में है, 4 में है, 5 यानी 4, 5, 6, 8, इन बच्चों के पेपर भी अगर आपके पास अवेलेबल है या आपके एक्सेस में है तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड करें ताकि मैं उन पेपर्स की वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड कर सकूं ताकि बच्चों का फ़ायदा हो सके. अब तक आपने ये पैराग्राफ नोट कर लिया होगा. लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कंपोजिशन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. इन द पैसेज यू हैव जस्ट रीड द ओल्ड हॉर्सेस आई नेवर येट कुड मेक आउट व्हाई men आर सो फॉन्ड और दिस स्पोर्ट दे ऑफन हर्ट देमसेल्फ ऑफन. ये जो पैसेज लिया गया है, इसी चैप्टर से ये पैराग्राफ लिया गया है. दिस इज ऑफ कोर्स द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज और इस राइटर का नाम लिखा हुआ है. एना सीवल इस पैसेज के राइटर हैं.
write a short composition about what you think of hunting as a sport. आपने एक छोटा सा composition, write a short composition, एक short composition लिखनी है और उसमें आपने बताना है इस hunting as a sport के बारे में कि आप क्या सोचते हैं. You may agree or disagree with Anna Sewell. क्या आप आना सीवल ने जो ये चैप्टर लिखा हुआ है, जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, कि आप इसके साथ एग्री करते हैं. बट गिव रीज़न फॉर योर व्यूज़. लेकिन अपने व्यूज़ का आपने रीज़न भी बताना है. यानी जो भी आप व्यूज़ लिखना चाह रहे हो या लिखते हैं तो उसके बारे में आपने रीज़न भी बताना है कि आप क्यों एग्री हैं या फिर क्यों डिसएग्री हैं. तो मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपसे शेयर करूँगी. आई एग्री विद एना सीवल व्यू that hunting is a cruel sport. It hunts animal for not good reason. In the story, the horses and the hare suffer because of hunting. The hare is chased or put in danger and forced to run in the rough field. I think there are better ways to enjoy nature without harming animals. People can watch animals, take photographs, or go nature walks. Hunting or killing animals just to enjoy a sport is not fair. In my opinion, hunting should not be called a sport. A real sport should be fun for everyone, not painful for animals. ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें. स्क्रीनशॉट लेके अपने साथ सेव कर लें. ओके, कंपोजिशन का ये आंसर है. इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पोएम है पेज नंबर 36 पे, मून विंड. इसके एक्सरसाइज के फुल सोल्यूशन के साथ, पैराफ्रेसिंग के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. बहुत सारी दुआएं आप बच्चों के लिए. हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.